Economic activities means those activities which are done to earn livelihood, and non-economic activities are those activities in which we are not earning something but we are doing it out of love, sympathy, sentiments, or as a parental feeling or for social satisfaction of a human being. So the same activity can be considered economic also, and the same activity can be considered non-economic also. If a teacher is teaching in the class, it's an economic activity because she is going to earn salary for it. If a teacher is teaching her daughter at home, then she is not going to earn anything. That is why it will be considered as non-economic activity. Now, economic activities have three types: business, profession, and employment, which we are going to study separately in the form of tabular form. Non-economic activities can be religious like you're going to a temple. Social means that you're doing get together with your friends. You're just getting a satisfaction out of it. You're not earning any money when you're meeting your friends or relatives. It can be parental, that means parents are doing something out of love and affection for their children. They're not going to earn anything with that activity. It can be patriotic activity which are done for the welfare of the nation. So all the human activities can be segregated into two parts, that is economic and non-economic. Economic is done to earn profit, non-economic is done for the social satisfaction of a human being. And the same activity can be economic also, non-economic also, depending upon the motive with which it is being done. Good morning, students. After discussing about business and the features of business, next topic will be difference between business, profession, and employment. Now, as you can see, I've sent you a picture of the difference. There are different bases, and it's very important to mention the basis before writing any difference. So the first basis is mode of establishment. Mode of establishment मतलब business कैसे setup होता है, profession कैसे setup होता है, या employment कैसे setup होता है. तो business is established at the sake of entrepreneur's decision. That means entrepreneur himself is the one who is going to take a decision to start up a business. और अगर उसका डिसीजन है कि उसको एक बिज़नेस स्टार्ट करना है तो वो कर सकता है. उसको मिनिमल अमाउंट की लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी जो कि वो पूरी करके स्टार्ट कर सकते हैं. प्रोफेशन में वन हैज़ टू बी अ मेंबर ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोफेशन में आप माइंड में लॉयर का एग्जाम्पल या डॉक्टर का एग्जाम्पल रख सकते हैं. तो प्रोफेशन में यू हैव टू बी अ मेंबर ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड यू हैव टू गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दैट यू हैव गॉट द डिग्री इन प्रोफेशन एंड दैट इज़ वाई यू आर प्रैक्टिसिंग, and in future you can become a doctor or lawyer. So you need a membership of a professional body and certificate of practice. Employment, you need an appointment letter, or I would say contract of employment or offer letter from your employer, and then only your employment is established. तो बिजनेस एस्टैब्लिश कैसे होता है? एंटरप्रेन्योर के डिसीजन पे. प्रोफेशन एस्टैब्लिश कब होता है? जब आप एक मेंबर बन जाते हो प्रोफेशनल बॉडी के और आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाता है. एम्प्लॉयमेंट एस्टैब्लिश कब होता है? जब आपको एम्प्लॉयर एक अपॉइंटमेंट लेटर या ऑफर लेटर ऑफर करता है. दैट मीन्स वो आपको हायर कर रहा है टू डू अ जॉब इन हिज ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड बेसिस इज नेचर ऑफ वर्क. क्या काम करना है आपको बिजनेस में? तो आपको पता ही है, आइदर यू हैव टू प्रोड्यूस गुड्स और प्रोक्योर गुड्स, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नेक्स्ट, प्रोफेशन में क्या काम करना पड़ता है? आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है. प्रोफेशनल सर्विसेज, एक्सपोर्ट सर्विसेज, स्पेशलाइज सर्विसेज प्रोवाइड करनी है टू द पब्लिक. एम्प्लॉयमेंट में यू हैव टू वर्क एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द एम्प्लॉयर. जो एम्प्लॉयर कहेगा वो काम आपको पूरा करना पड़ेगा. थर्ड बेसिस इज क्वालिफिकेशन. इन बिजनेस यू डू नॉट नीड एनी क्वालिफिकेशन. अगर आप एजुकेटेड नहीं हो देन ऑल्सो यू कैन स्टार्ट अप विद द बिजनेस. प्रोफेशन, यू नीड अ क्वालिफिकेशन एंड दैट टू फ्रॉम अ प्रोफेशनल बॉडी. आपको एक डिग्री लेनी पड़ेगी. कई बार आपको एंट्रेंस भी क्रैक करना पड़ता है और प्रोफेशनल बॉडी से आपको एक डिग्री लेनी पड़ेगी. एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर को जिस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करनी है वो मेंशन कर देते हैं कि उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. अगर आप उनके रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं और आप उनका इंटरव्यू क्रैक करते हैं तो दे कैन हायर यू. तो इट इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन द रूल्स एंड रेगुलेशंस और द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयर. Fourth basis is reward or return. That means if you are doing a business, what will you get in return? Look, business, profession, and employment, three of them are economic activities, and we are going to earn a return out of it. But we are going to give different names to it. In business, we are going to earn profit. In profession, we are going to earn fees. And in employment, we are going to earn salary or wages.
We have said already that business, profession, and employment are economic activities. That means we are going to earn something for our livelihood. So, in business, we are going to earn profit. In profession, we are going to earn fees. While in employment, we are going to earn salary or wages. Moving on to next basis, it's capital investment. That means how much capital has to be invested in business, profession, and employment. So, capital investment in business is totally dependent upon the nature and size of the business. That means if you're doing a business on large scale, you need more amount of capital, more amount of money. If you're doing a business on small scale, you need less amount of capital or money. Again, they're talking about nature of business. Nature of business means if you're doing the manufacturing work, you need more amount of capital. If you're just trading or providing the services, you comparatively need less amount of capital. I'm not saying you do not need capital. You need capital, but the amount varies depending upon the nature of business. तो नेचर में क्या आता है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम कर रहे हो, खुद ही सब कुछ बना रहे हो, तो आपको रॉ मटेरियल, मशीनरी, एवरीथिंग यू नीड एट योर ओन बेसिस, तो उस चीज़ में आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी. अगर आप ट्रेडिंग का काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट कम रहेगी. इन प्रोफेशन लिमिटेड कैपिटल इज रिक्वायर्ड. आपको पता है, आप डॉक्टर्स के क्लिनिक में जाते हो तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी दे हैव इन्वेस्टेड इन द क्लिनिक्स, इन देयर ऑफिसेज. सो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज इज रिस्क. Business, you have already studied about the feature of business, that risk is present there, element of risk is always there, because profits are totally uncertain, totally irregular. We are not sure we are going to earn profit or not. इसलिए आपको कुछ ना कुछ रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा, बेयर करना पड़ेगा in case of business. In case of profession, some risk is there because the professional people are earning their fees on regular basis. Doctors, lawyers are earning fees on regular basis, so little amount of risk is there. In employment, almost no or little risk is there because the one is going to the office providing the services to the employer and they are earning salary or wages, so they have not invested any capital also, so little or no risk is there in case of employment. Seventh basis is transfer of interest. That means can you pass on your work to the other person. So in case of business, it's possible if you are going to do certain legal formalities, कुछ legal formalities आप पूरा करेंगे तो कहीं ना कहीं हम काम जो है pass on कर सकते हैं to other person. But in professional, it's not possible. Why it's not possible? Because if you are a doctor, if you are a lawyer, you cannot pass on your skills to some other person and they cannot render services on your behalf. You're basically earning fees by rendering your services, so the other person cannot do it. That is why it's not possible to transfer the interest in case of profession. In case of employment also, it's not possible because you are the only one who is going to the office and providing your services or doing the work as per the employer. The other person cannot take your place, so it's not possible. Eighth point is code of conduct. In case of business, code of conduct, what do you mean by code of conduct? What is the meaning of code of conduct? कि आपका काम करने का तरीका क्या है. तो कोड ऑफ कंडक्ट में आपको कुछ मेंशन नहीं है बिजनेस में कि आपको ऐसे ही काम करना है. एक बिजनेसमैन को जैसा सही लगता है वो वैसे काम करते हैं. अगर उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाने का, तो वो कुछ भी करके प्रॉफिट कमाते हैं. तो देयर इज़ नो प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट इन केस ऑफ बिजनेस. यू कैन डू एनीथिंग यू फील लाइक, यू जस्ट हैव टू अर्न प्रॉफिट एंड succeed your make your organization successful by any means. In case of profession, a particular code of conduct has to be followed. You know very well, doctors have to follow a particular code of conduct. They have to give importance to their patients first and then to the monetary benefits. So in profession, a proper code of conduct has to be followed. In employment, the behavior or the code of conduct is laid down by the employer. That means whatever employer says, employee has to do that. So the code of conduct or the norms of the behavior or the rules of the behavior are laid down by the employer and the employee has to follow it. The last basis is example, which says business can be a shop or a factory, profession can be legal, medical, or CA, employment can be jobs in banks, insurance company, government departments, etc. In third slide, we can see the features of business. So the first feature is very easy. It shows that business is an economic activity. I've already told you business is an economic activity because we are not doing it for social satisfaction. We are doing it for earning money, and that money is known as profit. सेकेंड पॉइंट इज इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जब भी आप बिजनेस कर रहे हैं तो या तो आप खुद प्रोड्यूस करेंगे गुड्स या सर्विसेज को, या आप प्रोक्योर करेंगे यानी किसी और से गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे, ट्रेडिंग करेंगे. यानी आप ट्रेडिंग में कुछ पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, एक जगह से सामान खरीद रहे हैं और दूसरी जगह सामान बेच रहे हैं.
Third point is sale or exchange of goods and services. The very important part of business is that sale and exchange of goods and services should be there between the buyer and the seller. यानी commodities exchange होनी चाहिए buyer और seller के बीच में. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू. बिजनेस का मतलब ही यही है कि आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्सचेंज कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज को, ताकि आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट या कुछ ना कुछ पैसे कमा पाओ. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फीचर इज डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस. अगर आपको बिजनेस करना ही है देन यू हैव टू डू द डीलिंग्स ऑन रेगुलर बेसिस. अगर आप वन टाइम डील करके कुछ पैसा कमा रहे हो तो दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज बिजनेस. अगर आप रेगुलरली सामान बेच रहे हो, रेगुलरली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो और उससे यू आर अर्निंग सम मनी, दैट इज़ कंसिडर्ड एज बिजनेस. तो वन टाइम ट्रांजैक्शन को बिजनेस नहीं कहा जाता. जब भी रेगुलर डीलिंग्स होती है दैट इज़ नोन एज बिजनेस. Next is profit earning. It's very important. The main purpose of doing business is to earn profit. Profit क्यों चाहिए? सैलरीज देने के लिए चाहिए, सर्वाइवल के लिए चाहिए, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए चाहिए. हम काम ही इसलिए कर रहे हैं ताकि हम प्रॉफिट कमाएं. अगर हमें प्रॉफिट ना कमाना होता तो शायद हम सोशल काम कर रहे होते, बट वी आर डूइंग बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट. नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न. अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है? दैट इट इज़ नॉट श्योर कि आपने बिजनेस में जो पैसा लगाया है वो पैसा आपको वापस इन रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप प्रॉफिट कमा पाओगे या नहीं कमा पाओगे. दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट कि आपका बिजनेस कितना सक्सेसफुल होता है. तो यू कांट से कि हमने इतना पैसा लगाया तो हमें वो पैसा मिलना ही चाहिए. देयर इज़ ऑलवेज एन अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, क्योंकि कई बार हमारा जो बिज़नेस, हमने जिस बिज़नेस में पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं वो सक्सेसफुल नहीं होता बिजनेस, तो हमारा रिटर्न तो दूर की बात है, हमारा जो अमाउंट या कैपिटल हमने लगाया होता है वो भी सारा वेस्ट हो जाता है. मूविंग ऑन टू द लास्ट फीचर इन द लास्ट स्लाइड, एलिमेंट ऑफ रिस्क. दैट मीन्स देयर इज़ ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क इन बिजनेस. हमेशा एक रिस्क फैक्टर रहता ही रहता है. अगर स्मॉल स्केल बिजनेस करेंगे तो स्मॉल रिस्क रहेगा, लार्ज स्केल बिजनेस करेंगे तो लार्ज स्केल रिस्क रहेगा, बट रिस्क इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन बिजनेस. एंड बिजनेसमैन जानबूझ के रिस्क लेते हैं बिकॉज दे नो वेरी वेल दैट प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड ऑफ टेकिंग रिस्क. सबको पता है जितना ज़्यादा हम रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा हम प्रॉफिट कमाएंगे, इसलिए हर बिजनेस जो है वो रिस्क लेता है. तो मेन एलिमेंट ही बिजनेस का क्या है? रिस्क का. दैट मीन्स रिस्क will be present in every business whether on small scale or large scale, and risk is known as the uncertainty associated with an exposure to loss. Uncertainty यानी हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, तो रिस्क का मतलब ये है कि आने वाले टाइम में जो हम बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं वी आर नॉट श्योर कि हमें वो रिटर्न देगा या नहीं देगा. दिस इज द अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू अ बिजनेस. सो नेक्स्ट स्लाइड शोज the definition of business. So we can say that business is an economic activity. It is an economic activity because all the enterprises are doing the business to earn profit, and it is an economic activity which involves either production of goods, that means either we are going to produce the goods, either we are going to procure the goods from some other enterprise. It basically involves production, procurement and sales of goods and services with the motive of earning profit. So business की definition you can see on the page. It is written, business is defined as an economic activity involving the production and sale of goods and services with the motive of earning profit by satisfying the human needs in the society. Next we are going to focus on the different functions that are performed at enterprise level. So business includes a wide variety of functions that has to be performed in the organization, and वो wide variety of functions क्या क्या हैं? डिफरेंट एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है हमें बिजनेस में, जैसे कि फाइनेंसिंग, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. नाउ फाइनेंस, इसको हम डिफरेंट 4 डिपार्टमेंट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं. फाइनेंसिंग में बेसिकली मोबिलाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स होता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से भी पैसे रेज कर रही है उसको किस तरीके से यूज़ कर रही है वो फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट संभालता है. प्रोडक्शन, एज द वर्ड सेज, प्रोडक्शन संभालता है कमोडिटीज़ की, दैट मीन्स कन्वर्ट करता है रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स. Marketing involves exchange of goods and services, and it's very important that it also involves the satisfaction of the customers. Marketing department का काम ही होता है कि exchange करना goods and services की, in return profit कमाना, but at the same time satisfaction करना customers की needs की. And last is human resource management, which is totally related to the human resource of our organization. यानी जो लोग, जो एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनका ध्यान रखना, उनको कंपनसेशन देना, उनके इंक्रीमेंट्स करना, उनका प्रमोशन करना, और अगर कोई हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहा है तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग सारा काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट संभालता है. तो अगर क्वेश्चन बनता है व्हाट आर द फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड इन अ बिजनेस एंटरप्राइज, देयर आर वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शंस परफॉर्म्ड लाइक फाइनेंसिंग, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट.
डिपार्टमेंट, और ये चारों फंक्शंस के 4 अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ यानी हम बिजनेस क्यों करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स के और भी अलग टर्म्स हम यूज़ कर सकते हैं लाइक गोल्स और टारगेट्स। तो एक बिज़नेस को स्टार्टअप जब हम कर रहे हैं तो हमारा क्या गोल है, हमारा क्या टारगेट है। फॉर एग्जांपल मेरा टारगेट है, अगर मैंने बिज़नेस स्टार्टअप किया कि मेरी सेल्स वॉल्यूम मेरे को इस साल बढ़ानी है, यानी पिछले साल तक मेरी 5000 यूनिट्स की सेल हुई थी, बट राइट नाउ माई टारगेट है कि मैं उसको 8000 यूनिट्स तक करूँ। इसको हम रुपीज़ में भी कर सकते हैं। पिछले साल हमारी जो टर्नओवर था वो अराउंड 10 लाख का था, बट इस साल हमारा टारगेट है हमें टर्नओवर 20 लाख का करना है। हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात कर सकते हैं कि मैंने जितना पैसा कमाया पिछले साल मैंने उस पर रिटर्न कमाया था 10%, बट नाउ आई हैव टू अर्न 15%। सो व्हाट आर दीज आर माई टारगेट्स और गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड। तो एक बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं हम इस टॉपिक में यही पढ़ेंगे। और बिजनेस के 2 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, एक तो रहता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक का मतलब है पैसा कमाना, आगे बढ़ना। लेकिन अगर एक बिजनेस सिर्फ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पे फोकस करेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करेगा, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू फुलफिल द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी सोसाइटी के लिए भी कुछ उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर आप घर के पास किसी भी स्मॉल शॉप पे जाते हैं और अगर वो आपसे रूड बिहेव करता है या वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड नहीं करता या डबल रेट चार्ज करता है, अडल्ट्रेशन करता है, मिलावट करता है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो शायद आप सेकेंड टाइम उसकी शॉप पे जाना पसंद नहीं करेंगे। तो क्योंकि वो आपके घर के पास है तो आपको तो रिलायबल लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर रहा। तो एक फर्म सोच रही है कि एक बार कस्टमर आ गया उसको डबल प्राइस चार्ज कर लेते हैं और एक ही बार कमा लेते हैं, तो उसका पर्सपेक्टिव सिर्फ एक चीज़ पे चल रहा है, दैट इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एक बार तो वो कस्टमर से डबल रेट चार्ज कर सकता है, बट शायद अगली बार से वो कस्टमर वापस ही ना आए। तो कहीं ना कहीं उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है वो एक ही बार पूरा हो सकता है, नेक्स्ट टाइम वो पूरा नहीं हो पाएगा। So if a firm wants to achieve the objective of profit maximization or economic objective, it has to fulfill the social responsibility towards the society. That means it has to fulfill the social objectives also. अगर economic objective पूरे करने हैं, economic goals पूरे करने हैं, तो कहीं ना कहीं आपको social objectives भी पूरे करने पड़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स का जो मीनिंग है, ऑब्जेक्टिव्स आर डिफाइंड एज एंड्स विच अ फर्म सीक्स टू अचीव बाय इट्स ऑपरेशन। ऑब्जेक्टिव वो एंड पॉइंट्स हैं, वो टारगेट्स हैं, वो गोल्स हैं जो एक बिजनेस फर्म अचीव करना चाहती है बाय इट्स ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मतलब बाय इट्स एक्टिविटीज़। ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड डायरेक्शंस फॉर ऑल द डिसीजंस एंड एक्शंस। ऑब्जेक्टिव डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है सारे डिसीजंस के लिए, यानी हर एक एम्प्लॉय, हर एक मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए ही काम करता है। अगर फर्म का एक ही ऑब्जेक्टिव होगा तो वो एक्सीलेंस कभी भी अचीव नहीं कर सकता। तो अगर वो सिर्फ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पे चल रहा है और सोशल ऑब्जेक्टिव फॉलो नहीं कर रहा तो वो सक्सेसफुल कभी भी नहीं हो सकता, उसको दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने पड़ेंगे। सो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स अर्निंग प्रॉफिट, यानी हमने जितना पैसा लगाया है उसमें से हमें प्रॉफिट कमाना ही कमाना है। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। Second is market standing, that means we have to be better than our competitors. Competitors जिस भी पोजीशन में है हमें उनसे स्ट्रॉन्ग बनना है। थर्ड इज़ इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है नए आइडियाज़ लेके आना, न्यू मेथड्स लेके आना, अपने काम करने का तरीका चेंज करना। आप इनोवेशन ला सकते हो अपने प्रोडक्ट में, अपनी सर्विसेज में, अपनी एक्टिविटीज़ में, ताकि आप जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाओ वो और बेहतर हो। Optimum utilization of physical and financial resources, that means plant, machines, offices and funds को आपने अच्छे से यूज़ करना है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। इंक्रीजिंग, लास्ट इज इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है, आपको इनपुट और आउटपुट को कंपेयर करना है और इसी से आपको पता चलता है कि आप अपने काम में इतने कितने एफिशिएंट हो। अगर आप कम से कम इनपुट में से ज़्यादा आउटपुट बना पा रहे हो, दैट मीन्स यू आर वेरी एफिशिएंट इन योर वर्क और वो आपके सर्वाइवल और ग्रोथ में मदद करेगा। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस इज सोशल ऑब्जेक्टिव, एंड सोशल ऑब्जेक्टिव मीन्स दैट अ बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ टू फुलफिल इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स द सोसाइटी। सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ उनको अच्छा काम करना है, क्योंकि दे आर गेटिंग द रिसोर्सेज फ्रॉम द सोसाइटी, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें। तो फर्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। एक बिजनेस एंटरप्राइज को ध्यान रखना है दैट वॉट एवर गुड्स एंड सर्विसेज दे आर प्रोड्यूसिंग दैट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। प्रॉपर क्वालिटी प्रोवाइड करें अपने कस्टमर्स को,
सेकेंडली इंश्योर करें कि जो भी आईएसआई मार्क है इलेक्ट्रिकल गुड्स के ऊपर, एफपीओ मार्क है फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर, हॉल मार्क है ज्वेलरी के ऊपर, तो कंज्यूमर्स गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स आजकल प्रेफर करते हैं और वो ये मार्क देख के ही परचेज करते हैं। तो प्रोड्यूसर्स भी इंश्योर करेंगे कि उनके प्रोडक्ट पे ये मार्क होना चाहिए। और इस मार्क का, आईएसआई मार्क का, एफपीओ मार्क का, हॉल मार्क का मतलब क्या है कि द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड। The second objective of a firm is avoidance of anti-social and unfair trade practices. कोई भी unfair trade practice कोई भी business firm नहीं करेगा, जैसे कि black marketing करना, overcharging करना, misleading advertisements करना, झूठी बातें करना एडवर्टीजमेंट्स में, दिस इज़ नॉट अलाउड। और ये जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, दिस कैन हैम्पर द वर्किंग और द गुडविल और द इमेज रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन द आइज ऑफ द पब्लिक। तो इट्स बेटर कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें, आप कोई एंटी सोशल एक्टिविटी ना करें, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना करें और अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी फुलफिल करें। The third social objective is generation of employment. That means employment opportunities should be generated equally for every section of the society, whether it is weaker section, disadvantaged section, women section. Everybody should get equal employment opportunities, and business firms are rich enough, they have enough amount of resources to provide employment opportunities to different people. The fourth one is welfare of employees. Business firms should look after their employees. अल्टीमेटली बिजनेस फर्म्स को काम करके और कमा के कौन दे रहे हैं? एम्प्लॉयज़। तो बिजनेस फर्म्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट इज कम्युनिटी सर्विस। द बिजनेस फर्म्स शुड प्रोवाइड द कम्युनिटी सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल सेटअप करना, स्कूल सेटअप करना, डिस्पेंसरी सेटअप करना, फ्री सर्विसेज, फ्री वाटर सप्लाई। ट्राई करो कि स्लम एरियाज में वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कर सकें। इफ़ दे आर अर्निंग गुड फ्रॉम द सोसाइटी, सो दे शुड फुलफिल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय प्रोवाइडिंग कम्युनिटी सर्विसेज फॉर फ्री टू द सोसाइटी।